اور خبروں کی شروعات کریں گے پنجاب سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ۔ پنجاب کے ترن تارن سے یہ بڑی خبر ہے، سرحدی تھانے پر حملہ، یہ راکٹ لانچر حملہ لگتا ہے پولیس ذرائع کے مطابق۔ ساتھ ہی یہ بھی اطلاع ہے کہ کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بیتی شب 1 بجے یہ حملہ کیا گیا، نزدیک کے سروس سینٹر کی کھڑکیوں کو اس حملے سے نقصان پہنچا ہے۔ تو پنجاب کے ترن تارن سے یہ اہم خبر، جہاں سرحدی تھانے پر حملہ کیا گیا، پولیس ذرائع کے مطابق یہ راکٹ لانچر حملہ لگتا ہے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بیتی شب 1 بجے یہ حملہ کیا گیا اور نزدیک کے سروس سینٹر کی کھڑکیوں کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اہم خبر پنجاب کے ترن تارن سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈیٹر نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل تیجین سنگھ سوڈی۔ تیجین جی، اس بے حد اہم خبر پر تفصیلات چاہیں گے آپ سے۔ دیکھیے ہنا، یہ رات کو لگ بھگ 1 بجے کے قریب یہ حملہ ہوا ہے۔ یہ ترن تارن ڈسٹرکٹ جو ہے پنجاب کا، امرتسر بٹھنڈا ہائی وے پہ یہ پولیس اسٹیشن جو ہے، سرحدی پولیس اسٹیشن، یہ وہاں پر استھت ہے۔ اور رات کو 1 بجے کچھ نامعلوم شخص، یا وہ خالستانی آتنکی ہیں، کیا وہ گینگسٹرز ہیں، کیا مسکرینٹ ہیں، انہوں نے ایک راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر سے اس پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ ساتھ سے ہی ہائی وے جا رہا ہے، ہائی وے پہ ہی یہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہاں سے جو حملہ ہوا ہے، حالانکہ رات کو یہاں پر پولیس نفری بہت کم تھی، تو اس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ساتھ میں جو ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ہی جو ایک سروس اسٹیشن ہے، وہاں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ابھی اس پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے پنجاب پولیس، جو ان کی یہ سواٹ ٹیمز ہیں، باقی الگ الگ ایجنسیز جو ہیں، پورے ایریا کو محاصرے میں لے لیا، اور یہ چھان بین کی جا رہی ہے کہ اس حملے کو انجام دینے والے کون لوگ تھے، کیا وہ کسی خالستانی آتنکی سنگٹھن سے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا اسی سال مئی میں موہالی میں، پنجاب کے ہی موہالی میں انٹیلیجنس ونگ جو ہے پنجاب پولیس کی، اس کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ آتنکی سنگٹھنوں کے جو لوگ تھے انہیں گرفتار کیا، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن سامنے آئی اس میں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر بھی جو راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر سے جو حملہ ہوا تھا وہ پاکستان کے ذریعے آیا تھا۔ اور پچھلے کچھ بیتے سمے میں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ لگاتار پاکستان کی طرف سے ہتھیاروں کی کھیپ جو ہے ڈرون کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ سدھو موسے والا ہتیا کانڈ جو ہوا تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سوفیسٹیکیٹڈ جو ویپنز ہیں، ریوالور تھی یا AK-47 تھی، ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو پنجاب میں آئے دن اس طرح کے حالات جو ہیں بنے ہوئے ہیں، اس پہ کڑی نظر رکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیندری ایجنسیز بھی جانچ کر رہی ہیں۔ NIA بھی کئی کیسز پنجاب میں جو آتنکی حملے ہوئے ہیں ان کی جانچ کر رہی ہے۔ تو اس کیس کی بھی آنے والے کچھ سمے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کو بھی NIA کے سپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن ابھی پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، ساتھ کے علاقوں میں جو CCTV کیمریز لگے ہوئے ہیں انہیں کھنگالا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ CCTV کیمرے کچھ قید کر پائے ہیں، کون لوگ ملوث تھے اس آتنکی گھٹنا کو انجام دینے میں۔ جی ہنا، تیجین جی، آپ سے یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ناپاک جو سازشیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کشمیر، جموں، اور اب یہ پنجاب میں لگاتار اس طرح کی جو سازشیں ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں دھیان بھٹکانے کی بھی کوشش کے طور پر اس طرح کی حرکتوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہنا، ہم اسے دھیان بھٹکانے کی حرکت تو نہیں کہیں گے، لیکن اسے یہ کہیں گے کہ پنجاب میں بھی جو خالستان کی چنگاری ہے اسے بھڑکانے کی کوشش پاکستان سے لگاتار ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر میں تو پاکستان نے ایک پراکسی وار جو ہے پچھلے لگ بھگ 30-40 سال سے شروع کی ہوئی ہے۔ پنجاب میں حالانکہ حالات سدھر گئے تھے، جو پنجاب نے 80 کے دشک میں جو وٹنس کیا، جو قتل و غارت، جو خون خرابہ پنجاب نے دیکھا، پنجاب اس میں سے باہر نکل چکا تھا، لیکن پاکستان جو ہے
वो ये नहीं चाहता कि पंजाब में शांति हो, क्योंकि एक खुशहाल पंजाब पाकिस्तान की आंख का या एक कांटा बना हुआ है, जी, जी। पाकिस्तान के लिए नासूर है ये जो खुशहाल पंजाब। तो इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके पंजाब में वो जो खालिस्तान की चिंगारी है उसे फिर से भड़काया जाए। लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि इस तरह जो है कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ वो टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक कुछ तबका है जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, वो लोग, जैसे अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले अमेरिका में बैठे हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस को चलाते हैं, उन्होंने एक सो कॉल्ड रेफरेंडम 2020 शुरू किया था जिसको पंजाब में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली। जी है ना। तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए, और लगातार क्या कुछ इस ताल्लुक से खबर आएगी उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो नाज़रीन, लगातार इस बेहद अहम खबर पर तमाम तरह अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अहम खबर कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो लाखों अफराद के लिए इलाज का वाहिद जरिया है, इस अस्पताल पर करना से लकीर गांव देहात तक के लोगों की खास नज़र है। यहाँ पर वो इलाज के लिए आते हैं। खास तौर पर मौसम सरमा में कुपवाड़ा अस्पताल लोगों की वाहिद उम्मीद बन जाता है। इस अस्पताल में तमाम शोबेजात के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होना चाहिए, लेकिन आज भी अलमिया ये है कि यहाँ डॉक्टर्स की बेहद कमी देखी जा रही है। डॉक्टरों की कई आसामियाँ खाली पड़ी हैं। इस बीच सरकार ने हालिया फैसले में कुपवाड़ा में 3 गायनेकोलॉजिस्ट को रोटेशनल बेसिस पर गुरेज भेजने का फैसला किया है। इस पर आवाम में सरकार के इस फैसले पर गम गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है ताकि मौसम सरमा में आवाम को मजीद मुश्किलों का सामना न करना पड़े। कि जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की लीडरशिप है, एमपीज़ है, एमएलएज है, मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बात पर अपनी ज़बान को ताला क्यों लगाया है? क्या वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? क्या वो आज लोगों के पास नहीं जाते हैं? या क्या वो गाँव नहीं घूमते हैं कल आने वाले इलेक्शन के लिए हमें वोट दे दो? क्या उन पर हक नहीं है कि वो इस अस्पताल के बारे में बात करें? क्या उनको हक ये नहीं है कि ये जो यहाँ प्रॉब्लम है लोगों को है वो इस पर बात करें? मुझे इस बात करनी चाहिए कि हमारे इस अस्पताल के साथ क्यों बार बार जुल्म हो रहा है, बार बार इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। कभी इसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दिया जाता है, जब कोई मैट्रिक पास होता है तो उसको 12th में चढ़ना है, इसको तो प्राइमरी में लगाया गया है। मुझे इस चीज़ का पर बहुत अफसोस है और उन लीडरों पर भी बहुत अफसोस है जिन्होंने अपनी ज़बान पर ताला लगाया। अदालत ने निकाला कि यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको इसने गुरेज ट्रांसफ़र किया है। हम उसके खिलाफ बाज़ाब्ता आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो रिवोक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डेथ ऑफ स्टाफ इज़ देयर, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है इस डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर कुपवाड़ा में है, इसमें ऑलरेडी डॉक्टरों की किल्लत है। तो हमारी आपकी इस चैनल के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये ऑर्डर जो निकाला है ये ऑर्डर रिवोक होना चाहिए ताकि हमारी आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। क्या आपका कहना सही है कि यहाँ पर डॉक्टरों की किल्लत है, और किल्लत होने के बावजूद भी जो हमारे गायनी यहाँ पर थे हंदवारा से और कुपवाड़ा से उनको उठाया गया और गुरेज भेजा गया है, जबकि यहाँ से ही ज़्यादा लोग सफ़र हो रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है, आपको पता है कि यहाँ कितना एरिया कवर हो रहा है, कुपवाड़ा और हंदवारा जो भी 2 हॉस्पिटल हमारे हैं इन पर कितना लोड है। लिहाजा हम चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से हम गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कम से कम कुपवाड़ा ज़िले से डॉक्टर मत उठाइए, मेहरबानी कीजिए, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। नाजरीन, सेहत शोबा बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है, और जब इसी शोबे पर तलवार गिरेगी तो मरीजों का हाल क्या होगा। यानी कि कुपवाड़ा ज़िले में पहले ही गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, क्योंकि ये वो ज़िला है जो श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, और इसी ज़िले से अब यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट को गुरेज रोटेशनल बेस पर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम में इंतज़ामिया के तई गम गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि ये वो इलाका है जो सरहदों के साथ जुड़ा है, और कई इलाके ऐसे भी हैं जो 3 से 4 महीने के लिए कट रहते हैं और ज़िला सदर मुकाम से उनका राबिता मुनक़ता हो जाता है। कि सरमा के दिनों यहाँ लोगों को इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल का सामना रहता है, क्योंकि कई इलाकों के लोगों को बर्फ़ चीरते हुए कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचना पड़ता है, जिसकी ताज़ा मिसाल
पिछले साल मूरी की हमें देखने को मिली, क्योंकि मूरी से एक मरीज़ को कुपवाड़ा आना पड़ा, लेकिन कुपवाड़ा में उससे गायनिकोलॉजिस्ट दस्तयाब नहीं था, फिर उसे श्रीनगर रुख करना पड़ा और रास्ते में उसके बच्चे और उसकी मां की मौत वाक़या हो गई, जो कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। तो उम्मीद ये है, दुआ ये है कि उस तरह के हादसात दोबारा रोनमा न हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि कुपवाड़ा ज़िले में मज़ीद डॉक्टरों को भेजा जाए, न कि यहाँ ही के डॉक्टरों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। एक और अहम खबर आपको दे दें, वादी कश्मीर के कई मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी के ताल्लुक से यह खबर है। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इंतजामिया ने बानीपुरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सियाती मुकाम गुलमर्ग में 2 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो बेहद अहम खबर, वादी कश्मीर के कई मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बानीपुरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 2 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मोहम्मद सईद। सईद, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है? है ना, अगर हम गुरेज इलाके की बात करेंगे तो जो बर्फबारी का सिलसिला है वो रात भर वहाँ पे जारी रहा। उस इलाके में तकरीबन 5 इंच के करीब ताज़ा बर्फबारी हुई है। फिलहाल जो मौसम है, इस वक्त मौसम तब्दील हो गया है। इस वक्त इलाके में बर्फबारी नहीं हो रही है और जो इंतजामिया है उन्होंने गुरेज की जो अंदरूनी सड़कें हैं वहाँ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है ना। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि जो वादी के बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। चनाची बर्फबारी हुई और इंतजामिया ने गुरेज बानीपुरा सड़क को 2 दिन पहले ही बंद किया था ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आ सके। जी है ना। सईद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मॉक ड्रिल भी वहां पर किया गया था, खास तौर पर जो अहम शाहराहें हैं वहां से बर्फ हटाने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? आमदरफ्त के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी है ना, पहले ये जो इंतजाम है उन्होंने अलर्ट एक जारी किया था। जो मशीनरी है स्नो क्लियरेंस के लिए जो मुतल्लिका महकमा है उनको भी तैयार रखा गया था ताकि जो अंदरूनी सड़कें हैं वो खोल दी जाए फौरी तौर पर, ताकि लोगों को चलने फिरने में कोई दुश्वारी पेश ना आ सके। है ना, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो राजदान टॉप है वहाँ पे 1 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है और उस सड़क को खोलने का काम बीकन के जिम्मा है। लेकिन जैसे मौसम में तब्दीली आती है बीकन फौरी तौर पर उस सड़क को खोलने का काम करता है। फिलहाल इलाके में जो अंदरूनी सड़कें हैं उनको आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। जी है ना, आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। क्या कुछ और ख़ास एडवाइजरी जारी की गई है महकमा मौसमियात या फिर महकमा जो ट्रैफिक है उसकी तरफ से? जी है ना, बिल्कुल। जो लोगों को कहा गया है कि वो चलने फिरने में एहतियात बरतें, क्योंकि ये जो पूरा गुरेज है एवलांच प्रोन एरिया है, बर्फानी तूदे गिराने का खतरा हमेशा इन बालाई इलाकों में रहता है। इंतजामिया ने पहले लोगों को बताया है कि बर्फबारी होते ही वो चलने फिरने में एहतियात करे। और दूसरा ये कि जो मुतल्लिका महकमा है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा है, उनको बताया गया है जो हॉस्पिटल है, जो अहम दफातर है, उनको पहले तौर पर खोला दिया जाए ताकि जो वहाँ पे लोग आ सके उनको दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। और मैं आपको ये भी बता चलूं कि इस साल जिला इंतजामिया बानीपुरा ने इजाफी मशीनरी गुरेज रवाना की है ताकि जो पूरा तलील गुरेज का एरिया है बर्फबारी होते ही उस सड़क को आमदरफ्त के लिए खोला जा सके। जी है ना। सईद, ये तो रही बात कि इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने इंतजामात किए हैं इस बर्फबारी से निपटने के लिए। आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, मौसम की जो ये बर्फबारी है ये वहाँ पर काश्तकारों के लिए कितनी अहम है, फसलों के लिए कितनी अहम है? हाँ बिल्कुल है ना, इसकी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि जब बर्फबारी अच्छी होती है तो हम जो कह सकते हैं कि जो बहार है काश्तकारों के लिए बहार का ये मौसम होता है, क्योंकि पानी होना चाहिए खेती बाड़ी के लिए, काश्तकारी के लिए पानी होना, और ये एक जखीरा रहता है। जब आपको मौसम बहार में या मौसम गर्मा में पानी की जरूरत है तो यही पानी, ये बर्फ पानी की सूरत में खेतों में पहुंच जाता है। किसान काफी खुश है। महकमा जो बागबानी है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की थी कि वो जो शाख तराशी है वो करके रखें, और दूसरा जो एहतियाती तदाबीर है, जो बाग है, सेब के बागात है, वहाँ पे वो एहतियाती तदाबीर करके रखे ताकि बर्फबारी से
मेवा बागात या दूसरे जो दरख्त है उनको कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल सईद, बहुत अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंची है कि हर मौसम की अपनी एक खूबसूरती होती है और हर मौसम जो है वो कितना अहम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका तमाम तर जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी मुनीर हुसैन हुर्रा भी मौजूद हैं। मुनीर, इस बर्फबारी का इंतज़ार तो था, ख़ास तौर पर सयाहती मुकामात के लिए ये बर्फबारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या खास इंतजामात किए गए हैं, शाहराहों के ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। देखिए ना, जिस तरह हम गुलमर्ग की अगर हम बात करें सयाहती एतबार से, जिस तरह ये बर्फबारी होती है काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि गुलमर्ग में सयाह दुनिया भर से आते हैं और बर्फबारी के मुतमन्नी रहते हैं वो सयाह। और आज जो भी सयाह वहाँ पे आते हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात पूछी है, और उसमें पहले ही मशीनरी जो अलर्ट कर दी गई है, पहले ही जब पेशन गोई थी बर्फबारी की गुलमर्ग और वादी कश्मीर में, तो इस सिलसिले में हर जगह तमाम वादी के अंदर जितने भी मकामात हैं वहाँ पे मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है, बर्फ हटाने की मशीनरी जो है। इसी तरह टंगमर्ग से भी मशीनरी को वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया और तैयार बताया रखा गया है, ताकि अगर बर्फबारी हुई तो सड़कों से बर्फ जल्द हटाया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की आमद है उसमें खलल न पड़े। इसी तरह गुलमर्ग के अंदर भी जो सड़कें हैं जहां सयाह गुजर रहे हैं और उसमें जो मशीनरी होते हैं, जो ही बर्फबारी होते हैं वो फौरन वहां सड़कों से बर्फ हटाई जाती है, और ताकि सयाह जो है उनको दिक्कत ना आए। और इसी तरह मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें, क्योंकि रात के दौरान हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, और इसी तरह जो गुलमर्ग में है सयाह जो है काफी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और वहाँ पे इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। और मुनीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो सयाह आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि पहली बार वो इस तरह का मौसम देखते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है? उनके लिए यह है कि टंगमर्ग जो एक मकाम है जहां से गुलमर्ग तक करीबन 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, वहां से पहले ही एडवाइजरी जारी की जाती है जो ही बर्फबारी होती है। और जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स में जो जंजीर है वो बांधनी पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर जो टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि वो सेफ्टी रहती है सयाहों के लिए, ताकि जब फिसलन होती है सड़क पर और जब बर्फ जम जाती है, फिसलन होती है, तो उस वक्त हादसात के खतरात लाहक रहते हैं। और इस सिलसिले में यही कि वहाँ पे टायर में चेन बांधनी पड़ती है और उसके बगैर वहाँ जाने की इजाजत नहीं है, और चेन बांध कर ही जो सयाहों की गाड़ियां होती हैं वहाँ उन्हें जाने की इजाजत दी जाती है। और साथ साथ वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब चलने के दौरान या उधर कोंगडोरी और अफरवट की पहाड़ी पर जब सयाह जाते हैं उनको भी वहाँ पे बाज़ाब्ता एहतियात बरतने की अपील की जाती है, ताकि वहाँ कभी कभी अवलांचेस भी आते हैं और उसमें बड़ी होशियारी से सयाहों के लिए जाने की एडवाइजरी जारी की जाती है ना। जी मुनीर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। आप खुद भी अपना वहाँ बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में सर्दी से कुछ राहत मिली है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रातों से रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से ऊपर है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और सिर्फ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई है। कश्मीर में अब दर्जा हरारत में बेहतरी आ गई है। कम से कम दर्जा हरारत अब फ्रीजिंग पॉइंट से 1 डिग्री ऊपर चल रहा है। 2 दिन कबल तक जो दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 2 डिग्री नीचे चला गया था, वो अब नुक्ता इंजमात यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 1 डिग्री ऊपर चला गया है, जो दर्जा हरारत में बेहतरी और उसके साथ साथ फिलहाल बारिश या बर्फबारी का इम्कान नहीं। आज जो कहा जा रहा है कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और दूर पहाड़ों पे कुछ पहाड़ियों पे बर्फबारी हल्की हो सकती है। चिले कलान में अभी 10 दिन बाकी हैं और फिलहाल चिले कलान से पहले कोई भारी बर्फबारी की कोई पेश गोई नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं डल झील के किनारे, इनसे पूछते हैं कि किस तरह दर्जा हरारत में बेहतरी आई है, जो कम से कम दर्जा हरारत है। आप अपना नाम बताएं। रियान, मुझे बताइए क्या हाल है, अभी मौसम का क्या हाल है, सर्दी किस कदर है? परसों से सर्दी जो है बहुत ज्यादा थी, अब 1-2 दिन हो गए जिसमें सर्दी बहुत कम हो गई है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ गया है, अभी ऊपर चला गया है, लेकिन अभी सर्दी बहुत कम है, बहुत फर्क आ गया 2 दिन से, पिछले 2 दिन से। कल मुझे एक चीज बताइए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब
यहाँ पे आग जलाई है गर्मी के लिए, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही है। बात जारी रखेंगे। एक चीज जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब बर्फबारी हो जाती है तब मौसम में बेहतरी आती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है और जो बीमारियां काफी होती हैं वो भी कम हो जाती है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो खुश्की होती है ना, जो सर्दी में आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है, फिर बर्फ और बारिश नहीं गिरती है, उसकी वजह से बंदे बीमार पड़ जाते हैं, कोल्डनेस आ जाती है, क्योंकि बारिश और बर्फ पड़ती नहीं है। तो ये अच्छा हो गया, पिछले 2 दिन से जो है सर्दी कम हो गई है। इनकाम भी है, क्योंकि प्रेडिक्शन दिया हुआ है, आज 60-70% स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है हिली एरियाज में, उससे भी सर्दी कम हो जाएगी और जो है बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उससे। फिलहाल हल्की बर्फबारी का इम्कान, वो भी दूर पहाड़ी इलाकों में। यहाँ ये लोगों को उम्मीद है कि चिले कलान तक तो कम से कम बर्फबारी हो। बर्फबारी कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बर्फबारी के चलते ही यहाँ पे जो पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, खासकर चिले कलान की बर्फबारी, और वही जो यखबस्ता बर्फ होती है वही साल भर यहाँ पे रवानी पैदा कर देता है दरियाओं में, और वही एक अहम सोर्स है, अहम जरिया है पन बिजली का, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। और साथ में जो यहाँ पे आपको झील झरने और वादियाँ शादाब रहती है वो इसी पानी की बदौलत रहती है। तो जाहिर सी बात है बर्फ बहुत ज़रूरी है, और अब चिले कलान तक ही देखते हैं कि बर्फबारी यहाँ पे होती है या नहीं। फिलहाल आज इम्कान यही, पेशगोई यही कि हल्की बर्फबारी दूर दराज इलाकों में, कुछ इलाकों में हो सकती है, बाकी आम तौर पे हल्की बारिश मैदानी इलाकों में हो सकती है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के इश्तिराक से अवंतीपुरा में दरियाए झेलम के दोनों अतराफ से सफाई मुहिम का आगाज किया है। इसमें यूनिवर्सिटी के अफसरान और म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरपर्सन शमीमा रैना मौजूद रही। मुहिम के दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर कूड़ा करकट हटाया। मकसद और मुद्दा है कि हमें लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि सफाई कितनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना हमारे लिए कितना अहम है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हम अपने माशरे को, हम अपने रिवर को, हम अपने बिल्कुल सड़कों को, घरों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें तो हम कई बीमारियों से निजात दिला पाएंगे अपने आप को। जी, ये क्लीननेस ड्राइव जो है एक्चुअली ये हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेट किया था। प्रेसिडेंट जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अवंतीपुरा की हैं मिस शमीमा रैना, उनके ताउन से हमने यहाँ पे ये बैंक्स ऑफ जो झेलम रिवर है वो साफ़ करवाए थे, और आगे भी हम ऐसे क्लीननेस ड्राइव्स करते रहेंगे ताकि कारगा त्राल में मौजूद हांगुल ब्रीडिंग सेंटर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि ब्रीडिंग सेंटर में जल्द ही हांगुल को लाया जाएगा। रेंज ऑफिसर शौकत अहमद के मुताबिक वो कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में मौजूद हांगुलों को ही ब्रीडिंग सेंटर में लाया जाए।